Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Hussain Abbas and you are watching SH Knowledge. I welcome all of you at my channel. We are going through prepositions and today we will discuss about behind and beyond. And there are a lot of words having different applications and they are classified into different parts of speech. So parts of speech are very important when we are trying to speak English, when we are trying to write English. So it matters a lot if we understand parts of speech, different descriptive writing. What is behind? Physically, behind means at the back of or to the back of. It means that some object or something is hidden at the back of some object. कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक जगह या एक चीज के पीछे छुपा हुआ हो तो हम कह देते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड दैट थिंग, बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट. For example, if we say that a person is standing at the back of the door, then we can say the person is behind the door. So it means that preposition behind describes the position of an object at the back of any other object. Behind को हम preposition के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, behind को हम adverb के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और behind को हम noun के तौर पर भी यूज कर सकते हैं. So let's start today's lecture and understand that what are these prepositions and their different applications. First of all, we will describe about preposition behind, and as we know that behind describes that something or some object is present at the back of something else or some object. So हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करते हैं कि behind को हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. We have some examples. Number one is close the door behind you. This is an imperative sentence because there is no subject present, and in imperative sentences understood subject is considered as you. Close the door, दरवाजा बंद कर दें. Behind you, अपने पीछे. Now here behind is a preposition that is connecting this pronoun that is used as an object with the other part of the sentence. So it means कि आपके पीछे जो दरवाजा है उसे बंद कर दें. अब जो पार्ट, जो पोर्शन उस ऑब्जेक्ट का आपके पीछे होगा वो एग्जैक्टली सामने वाले बंदे को नजर नहीं आएगा because that will be hidden. Now in the second sentence, the garage is behind the store. के जो गैरेज है या गैराज है वो स्टोर के पीछे है. अब जो गैराज है उसकी लोकेशन है बताई जा रही है जो कि स्टोर के बैक साइड पर है, एट द बैक ऑफ, के पीछे. सो इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग एट द बैक ऑफ को कंसीडर करते हैं एज अ लिटिल मीनिंग फॉर preposition behind. एक चीज के पीछे बताया जा रहा है किसी चीज को. द लेटर फेल, के खत जो है वो गिर गया. बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे, टेबल के पीछे एक खत गिर गया. नाउ हियर दिस preposition is telling us about the place where the letter fell. Now here this is the noun, the letter as a subject, and this is the table as a noun, as an object. और यहाँ पर द टेबल का जो कनेक्शन है वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के साथ जोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस preposition. What happened with the table? The letter fell behind the table. In sentence number 4, stay close behind me, कि मेरे पीछे छुपकर खड़े हो जाओ. Now behind me, मेरे पीछे. अब जो पर्सन आपके पीछे छुपा हुआ है वो सामने वाले बंदे को फिजिकली नजर नहीं आएगा because the person is at the back of you. It means behind जो है वो हमें एक जगह की बात करता है, एक प्लेस की बात करता है because these all prepositions either describe time or place or different situations. So here we get the point about place. I live in a small house. मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ. Behind the station जो कहाँ पर मौजूद है, at the back of the station, के स्टेशन के पीछे मौजूद है. तो यहाँ पर भी हमें प्लेस के मीनिंग्स मिलते हैं कि वो एक स्टेशन के बैक साइड पर है. In sentence number 6, the sun disappeared behind the clouds, कि जो सूरज था वो छुप गया बादलों के पीछे. In all these sentences we have used preposition behind, and here in all these sentences preposition behind is describing that the noun or the subject present in the first part of the sentence is somewhere behind the object or behind the object of the preposition. कि जो उस preposition के बाद हमने noun इस्तेमाल किया है उसके बैक साइड पर आपने किसी noun या किसी सब्जेक्ट की जो प्लेस है वो बताई है. तो यहाँ पर हम यूज करते हैं behind को at the back of, कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे मौजूद है. Now first of all we will read these sentences. The building work is already behind schedule or schedule.
he is behind rest of the class and he was left behind during the migration. So now in the first case, we have studied about something that is located or present behind something or at the back of something. But here in this case, it means that when there is a development, when there is a scenario of progress, किसी काम के चलने की, किसी प्रोग्रेस के होने की, लाइक कोई काम हो रहा होता है, कोई टेस्ट हो रहा होता है, उसमें अगर आप पीछे रह जाते हैं, इट मीन्स कि आप लेस प्रोग्रेस शो करते हैं एज कंपेयर टू समवन एल्स। तो आपकी जो लेस प्रोग्रेस शो करना, इट मीन्स यू आर लिविंग बिहाइंड, कि आप पीछे रह रहे हैं। लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस, द बिल्डिंग वर्क इज ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल, कि जो बिल्डिंग का काम है वो पहले ही शेड्यूल से पीछे है। इट मीन्स के जो शेड्यूल बनाया गया था कि फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स और 4 मंथ्स में वो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जो काम शुरू हुआ है वो ऑलरेडी उस शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहा, मतलब उससे पीछे रह गया है ड्यू टू अनसर्टन रीजंस। तो यहाँ पर एक लेस प्रोग्रेस शो की गई है। इन द सेकंड सेंटेंस, ही इज बिहाइंड रेस्ट ऑफ द क्लास, कि वो बाकी क्लास से पीछे रह गया है। इट मीन्स के आप टेस्ट में मार्क्स कम ले लेते हैं, या आप जो ग्रामर है या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि अभी आपका बहुत ज़्यादा काम सीखने वाला रहता है। दैट्स वाई ये कंसिडर किया जाता है दैट यू आर बिहाइंड द अदर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग वेरी वेल। इसी तरह से ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द माइग्रेशन, कि हिजरत के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। उसमें ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, कि वो पीछे रह गया या उसे पीछे छोड़ दिया गया। तो इस सिनेरियो के अंदर हमने प्रेपोजिशन बिहाइंड का इस्तेमाल किया, कि जिसमें एक प्रोग्रेस के दौरान, एक वर्क शेड्यूल के दौरान आपका पीछे रह जाना ड्यू टू एनी वीकनेस, ड्यू टू एनी लैग ऑफ टाइम। The behind preposition is used to show less progress as compared to the other things. Now in this scenario, his family is behind him in every situation, कि उसकी फैमिली या उसका खानदान उसके पीछे है इन एवरी सिचुएशन, हर सूरत हाल में। इन द सेकंड सेंटेंस, डू नॉट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत या तजब्जुब का शिकार ना हो। तो यहाँ पर जो है एक इनकरेजमेंट का हमें मीनिंग मिलता है सेंटेंस को पढ़ने से। हिज फादर इज बिहाइंड हिज सक्सेस, के उसकी कामयाबी के पीछे उसके वालिद हैं, हिज फादर्स एफर्ट्स कह सकते हैं। सो यहाँ पे इस सिनेरियो में हमें जो बिहाइंड प्रेपोजिशन है वो बताता है कि एक बंदा आपके बैक साइड पर मौजूद है। बैक साइड पर मौजूद होने का क्या मतलब है कि उसने आपके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है, सपोर्ट के मानों में, हेल्प के मानों में, कि वो आपको सहारा दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे हूं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हर्डल आएगी तो आई विल बी देयर टू रिमूव ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पर बिहाइंड के इस सिनेरियो में हमें एक सपोर्ट का एलिमेंट मिलता है। व्हेन यू आर सपोर्टिंग समवन, यू से आई एम बिहाइंड यू, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ हूं, आपकी हेल्प करूंगा, आप चलते जाएं। सो वी हैव स्टडीड 3 सिनेरियोज। नंबर 1, व्हेन यू आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट द बैक ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। Number 2, when you show less progress and stay behind. And on number 3, when you are supporting someone staying back of that person. What is behind that happy smile? कि इस खुशगवार मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है, क्या बात है। He was the man, वही आदमी था, behind this plan, इस मंसूबे के पीछे, or the plan of construction or any planning can be. She has 10 years of experience, उसके पास 10 साल का तजुर्बा है। Behind her, उसके पीछे, या she is having 10 years of experience। आप एक रीजन की बात कर रहे हैं, आपको एक स्माइल नजर आई, एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्माइल, के इस स्माइल के पीछे वो छुपा हुआ जो सीक्रेट है, वो सरप्राइज है, वो क्या है। और इसी तरह से आपने एक प्लान देखा, उस प्लान के पीछे रीजन जो थी वो एक सर्टेन पर्सन था। एंड इन द लास्ट सेंटेंस, शी हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हर, कि उसके पीछे उसका 10 साल का तजर्बा मौजूद है। इट मीन्स दैट she is very skillful in her work, whether she is a doctor or engineer or a lawyer or whatever the field she is doing, it means that she is having a good experience. So when something becomes a reason for other thing, कोई वजह आप ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इस मंसूबे के पीछे, इस काम के पीछे कौन है, तो जो आप पीछे का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रेपोजिशन behind।
तो अभी तक हमने 4 सिनेरियोज में प्रेपोजिशन बिहाइंड को देखा है। सबसे पहले हमने प्लेस की बात की, व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट एट बैक ऑफ समथिंग। उसके बाद हमने बात की व्हेन समवन और सम ऑब्जेक्ट इज शोइंग लेस प्रोग्रेस, देन वी यूज प्रेपोजिशन बिहाइंड। एंड देन हमने बात की व्हेन we are supporting someone, we use preposition behind. And in the last scenario, when we are looking for some reason of an outcome, then we use preposition behind. तो ये वो तमाम uses हैं word behind के as preposition. कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जिनमें जो behind है ये सेंटेंस के एंड पे आ रहा होता है और उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा होता। We can say there is no object of preposition in some cases, and in those cases what would be the word behind, whether it is a preposition or it is an adverb. So let's see those sentences. We have used 3 sentences where we can see the preposition or the word behind is present at the end of the sentence and there is no noun or object of preposition is present after the word behind. We can say if there is a preposition as a behind, then what in this case what would be the role of the word behind? Either it is a part of speech other than the preposition. Let's see. I grabbed the thief, मैंने चोर को दबोचा या पकड़ा। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। मोस्टली फ्रॉम बिहाइंड जो है ये एक कंपाउंड वर्ड के तौर पर भी ग्रामर के अंदर यूज किया जाता है। पीछे से एक आप उनको एक एंगल बता रहे होते हैं कि आपने किसी को दबोचा, कोई चीज पकड़ी, कोई चीज रखी, तो फ्रॉम बिहाइंड का वर्ड जो है वो इकट्ठा यूज किया जा रहा होता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं आई ग्रैब द थीफ, कि मैंने थीफ को पकड़ा या दबोचा, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से। अब यहां पर अगर हम देखते हैं फ्रॉम, दैट इज आल्सो अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको बता रही है से कि कहां से पकड़ा। फ्रॉम हमें एक सोर्स का पता देती है कि किसी सोर्स से आगे किसी और जगह पे। सो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है बिहाइंड, के मैंने उसको पीछे से पकड़ा। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि the word behind is acting either as an adverb or either as a noun. For example, if we say the word from is a preposition and after preposition there should be a noun as an object of the preposition. Now यहाँ पर अगर behind को हम noun लेते हैं, it means that it is giving us the meaning ऑफ द पोस्चर ऑफ द पर्सन, कि उसकी जो एक साइड थी, उसका जो पिछला हिस्सा था, उस हिस्से को बतौर नाउन के सेंटेंस में यूज किया गया है कि आपने उसको पोस्चर से पकड़ा। और अगर यहाँ पर प्रेपोजिशन अवेलेबल ना हो, जस्ट बिहाइंड का वर्ड लिखा गया हो, देन हमें यह देखना पड़ेगा कि बिहाइंड इधर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर बिहाइंड किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा देन 100% इट वुड बी अ प्रेपोजिशन। बट अगर बिहाइंड विल डिस्क्राइब और क्वालिफाई और वी कैन से मॉडिफाई द वर्ब, देन द वर्ड विल बी द एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस। एज इन द सेकंड सेंटेंस, कीप मूविंग, चलते रहें। आई शैल स्टे, मैं रहूंगा, बिहाइंड पीछे, कि मैं पीछे रहूंगा, आप चलते रहें आगे। यहां पर आप देख सकते हैं बिहाइंड से पहले कोई प्रेपोजिशन मौजूद नहीं है, जस्ट बिहाइंड मौजूद है, और बिहाइंड के बाद कोई नाउन भी मौजूद नहीं है जिसको हम कहेंगे वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब हम ये देखते हैं कि द वर्ड बिहाइंड का इस सेंटेंस में रोल क्या है। आई शैल स्टे, मैं रहूंगा, कहां रहूंगा? देन द वर्ड बिहाइंड इज टेलिंग अस दैट आई विल स्टे एट द बैक, कि मैं पीछे रहूंगा। It means here the word behind is describing the word stay, मैं रहूंगा पीछे। तो यहाँ पे जो behind है it is playing the role of an adverb. adverb का हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक आइडिया मिल रहा है। A word that is qualifying a verb is called an adverb. In the third sentence, when we return the hotel, जब हम होटल वापस आए, आई लेफ्ट माई वॉलेट बिहाइंड, तो मैं अपना वॉलेट या पर्स जो था वो पीछे छोड़ गया या रह गया या पीछे भूल गया। नाउ वेयर देयर इज नो नाउन प्रेजेंट आफ्टर द वर्ड बिहाइंड, इट मींस दैट मे बी बिहाइंड इज नो प्रेपोजिशन हियर, क्योंकि वो किसी नाउन को बाकी सेंटेंस के साथ नहीं जोड़ रही है। अब यहां पर देखते हैं आई लेफ्ट माई वॉलेट, मैं अपना पर्स छोड़ गया या मेरा पर्स छूट गया या मेरा पर्स रह गया। कहां रह गया? बिहाइंड पीछे।
तो यहां पर हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि बिहाइंड इज क्वालिफाइंग द वर्ब लेफ्ट, दैट लेफ्ट के रह गया या छूट गया, कहां छूट गया, बिहाइंड पीछे कहीं छूट गया कि जहां से हम आ रहे थे। तो यहां पर भी जो बिहाइंड है इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस। बिहाइंड इज यूज्ड एज अ नाउन आल्सो, बिहाइंड इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 scenarios where behind is used as a preposition. So this was all about preposition behind, and in the next video we will describe about the word beyond. I hope that you will have liked this information. Please like and subscribe this channel. इंशाल्लाह आपसे next video में दोबारा मुलाकात होगी. Till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much and अल्लाह हाफिज़.